Islamic land. Students, as is topic last part, the study of new subject promoted critical inquiry and had a profound influence on Islamic intellectual life. आज जो हम नए जो विषय अभी हम पढ़ेंगे उनकी हम जो आलोचनात्मक इंक्वायरी है और साथ में जो इस्लामिक जो इंटेलेक्चुअल जो उनका लाइफ थी उसके बारे में. स्कॉलर्स विद ए थियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड such as the group known as Mutazila use Greek logic and methods of reasoning to defend Islamic belief. यानी कि मेनली जो स्कॉलर जो एक ग्रुप था जिसको कि मुताजिला बोलते थे, उन्होंने जो मेथड यूज़ किया तर्क के आधार पर उन्होंने इस्लामिक विश्वासों की बातें रखी. फिलोसफर पोज वाइडर क्वेश्चन एंड प्रोवाइड फ्रेश आंसर. यानी कि उन्होंने बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर तो पर्सन रखे और उनके बहुत ही सही से जवाब दिया. इब्न सीना, a doctor by profession and philosopher, did not believe the resurrection of the body on the day of judgment. यानी कि कयामत के दिन उनका ईमान औरों को मानना था कि वे लोग पैदा दोबारा हो जाते हैं, जीवित होते हैं. उसने कहा ऐसा नहीं होता. दिस वॉज मेट विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम थियोलॉजियंस. हिज मेडिकल राइटिंग वर वाइडली रीड. उसकी जो मेडिकल से संबंधित बातें बहुत ज़्यादा पढ़ी गई. द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉज अल कानून फी तिब, कानून ऑफ मेडिसिन, ए मिलियन वर्ल्ड मैन्युस्क्रिप्ट दैट lists 760 drugs sold by the pharmacist of his day, and includes notes on his own experiment conducted in hospitals. The Quran point out the importance of dietetics, the influence of the climate and environment on health, and the contagious nature of some disease. उसने अपने इसके अंदर जो वातावरण या मौसम के हिसाब से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में भी वर्णन है वो किया. द Quran was used as a टेक्स्ट बुक इन यूरोप. यूरोप के अंदर एक टेक्स्ट बुक के रूप में उसको यूज है वो किया गया. वेयर द ऑथर वॉज नॉन एज एविसिना. जो ये ऑथर था इसको यूरोप का क्या जाना जाता था, एविसिना. जस्ट बिफोर हिज डेथ द साइंटिस्ट एंड पोइट उमर खयाम was said to be reading the Quran. His gold toothpick was found between 2 pages of the chapter and metaphysics. In medieval Islam, mixed society, fine language and a creative imagination were among the most appreciated quality in a person. These qualities raise a person's communication to the level of adab, a term which implied literary and cultural refinement. Other form of expression included poetry, यानी कि जो नज़म होती हैं, and prose, यानी गद्य और पद दोनों में उनको लिखा गया, which were meant to be memories and used when the occasion arose. The most popular poetic composition of pre-Islamic origin was the ode. कसीदे जो होते हैं ना भाई, किसी चीज़ पर कसीदे जो कसते हैं भाई, कुछ बातें कह के उसके ऊपर. Developed by the poet of the Abbasi period to glorify the achievement of their patrons. Poets of Persian origin revitalized and reinvented Arabic poetry and challenged the cultural hegemony of the arts. Abu Nuwas, who was the Persian origin, broke new ground by composing classical poetry
on new themes such as wine and male love with the intention of celebrating pleasure forbidden by Islam. After Abu Nuwas, the poet addressed the object of their passion in the masculine, even if the latter was a woman. Following the same tradition, the Sufi glorified the intoxication caused by the wine of mystical love. By the time Arab conquered Iran, Pahlavi, the language of the sacred book of ancient Iran was in decay. A version of Pahlavi known in New Persian with a huge Arabic vocabulary soon developed. उस टाइम पे क्या है कि पहलवी जो है उसका जो वर्जन पर्शियन में हो गया और उसका अरबिक जो वोकेबुलरी के अंदर बहुत ज़बरदस्त उसका विकास हुआ. द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत इन खुरासान एंड ट्रांसोक्शना टुक न्यू पर्शियन ए ग्रेट कल्चरल हाइट. इस दौरान जो पर्शियन जो संस्कृति थी भाई वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे गई. द समानीद कोर्ट पोइट रुदकी वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोइट्री. जो समाधि कोर्ट का जो पोइट था रुदकी, वो उस टाइम पे नए पर्शियन जो कविताएं थी ना उनका के फादर के रूप में जाने लगा. विच इंक्लूडेड न्यू फॉर्म सच एज द शॉर्ट लिरिकल पोइम गज़ल. उस दौरान एक छोटी छोटी कविताएं भी आने लगी जिनको क्या कहा जाता था, गज़ल. एंड द क्वाट्रेन द रुबे इज ए 4-line stanza in which the first 2 lines set the stage, the third is finally 4. शुरू के तो जैसे कहावत में हो जाती भाई उस आदमी ने ये कहा और उसके बाद में बाकी के जो मैटर था वो वैसे स्टेंजे में चलता. एंड द 4 delivers the point in contrast to it 4. The subject matter of the rubai is unrestricted. It can be used to express the beauty of a blow, a pattern, or express the thoughts of the philosopher. The rubai reached its zenith in the hands of Umar Khayyam, also an astronomer and mathematician who lived in various time in Bukhara. मेनली जो ये बातें थी सब उमर खयाम जो थे उनसे उन्होंने भी इनके बारे में लिखा. तो मैक्सिमम टाइम कहाँ पर रहे, बुखारा में. एंड इस्फान. एट द बिगिनिंग ऑफ 11th century गजनी बिकम द सेंटर ऑफ पर्शियन लिटरेरी लाइफ. शुरुआत में जो गजनी साम्राज्य था ऊपर जो पर्शियन हमारा साहित्य था सेम मतलब वहाँ से ज़्यादा है वो चला. पोइट वर नेचुरली अट्रैक्ट बाय द ब्रिलियंस ऑफ द इंपीरियल कोर्ट. रूलर्स टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैट्रोनाइजिंग आर्ट एंड लर्निंग फॉर इनहेंसिंग देयर प्रेस्टीज. इंक्लूड यहाँ पर स्कॉलर भी, पोइट भी, इंक्लूड रूलर भी इन चीज़ों को ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा योगदान देते थे. Mahmud of Ghazni gathered around him a group of poets who composed anthology. महमूद जो गजनी था उसने एक पूरा समूह तैयार किया उन कवियों का जो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे. एंड एपिक पोइट्री द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वॉज फिरदौसी. इनमें सबसे जो ज़बरदस्त था वो कौन था, फिरदौसी. who took 30 years to complete the Shahnama, Book of King, as an epic of 50,000 couplets which has become a masterpiece of Islamic literature. जिसमें उसने उस दौरान लगभग 30 सालों के उस टाइम में एक बुक लिखी शाहनामा यानी कि राजाओं की किताब. द शाहनामा इज collection of tradition and legend being that of which poetically depict Iran from creation up until the Arab conquest. It was in keeping with the Ghazanvi tradition that Persian later became the language or administration and culture in India.
इसने उस दौरान जो वर्ल्ड के जो कल्चर था उसके साथ साथ में भारतीय जो संस्कृति थी उसके बारे में भी काफ़ी कुछ है वो बताया। द कैटलॉग किताबुल फेरिस्त ऑफ ए बगदाद बुक सेलर इबन नदीम describe a large number of works written in prose for the moral education and amusement of readers. The oldest of these is collection of animal fable called Kalila was Dimna, the name of two jackal who were the leading character, which is the translation of Pahlavi version ऑफ द पंचतंत्र। पंचतंत्र यानी कि पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं उनको भी पहलवी उसमें किया गया। द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड लास्टिंग लिटरेरी वर्क आर द स्टोरी ऑफ हर एडवेंचर सच एज अलेक्जेंडर एंड सिंदबाद और ऑफ एन हैप्पी लवर सच एज क्यास नोन एज मंजनू और मदमन। इनकी जो प्यार की कहानियाँ हैं वो भी इनके अंदर है वो लिखी गई। दीज हैव डेवलप्ड ओवर द सेंचुरी इनटू ओरल एंड रिटन ट्रेडिशन, और इस शताब्दियों तक लिखित में और मौखिक रूप से सुनाई गई। द 1001 नाइट 1001 रातें इज अनदर कलेक्शन ऑफ स्टोरी टोल्ड बाय ए सिंगल नरेटर, केवल एक ही जो नरेटर था उसने बताई। शहरजाद टू हर हस्बैंड night after night. The collection was originally in Indo-Persian and was translated into Arabic in Baghdad in the 8th century. जो शहरजाद नाम की जो औरत थी उसने अपने पति को ये 1001 कहानियाँ सुनाई जो उस टाइम पे अरबिक और बगदाद लैंग्वेज में 8वीं सदी के अंदर भी ट्रांसलेशन उनका हुआ। मोर स्टोरी वर लेटर एडेड इन कायरो ड्यूरिंग द मामलुक पीरियड। कुछ एक कहानियाँ जो मामलुक समय था उस दौरान भी लिखी गई। These story depict human being of different type, the generous, the stupid, at a gullible, the crafty, and were told to educate and entertain to his किताब अल बुखाला बुक ऑफ मिस्र की जो किताब थी उसके अंदर बहुत सी बातें ये लिखी गई। जहीज ऑफ बसरा collected amusing anecdote about Misr and also analyze great, जो उनके लालच की जो बातें थी उनको भी इसमें शामिल है वो किया गया। From the 9th century onward, the scope of adab was expanded to include biography, manuals of ethic, mirror for prince, book and statecraft, and about ऑल हिस्ट्री, तारीख एंड जियोग्राफी, पूरा इतिहास और भूगोल इसमें लिखा गया। द ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग वॉज वेल स्टैब्लिश इन लिटरेट मुस्लिम सोसाइटी। हिस्ट्री बुक्स वर रीड बाय स्कॉलर एंड स्टूडेंट एज वेल एज बाय द ब्रॉडर लिटरेट पब्लिक। जो इतिहास किया ये जो पुस्तकें थी इनको बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, उन्होंने भी और भी जो पब्लिक थे उन्होंने इनको पढ़ा। फॉर रूलर एंड ऑफिशियल हिस्ट्री प्रोवाइडेड ए गुड रिकॉर्ड ऑफ द ग्लोरीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ ए डायनेस्टी एज वेल एज एग्जाम्पल ऑफ द टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर हमें मेनली जो उस टाइम पर उनके जो रिकॉर्ड थे, उनके जो अचीवमेंट्स थे, जो साम्राज्य थे, उनकी जो तकनीक थी, प्रशासन की तकनीक थी, वो सब बातें इसमें लिखी जाती हैं। In the two major historical work, Ansab al-Ashraf and Tariq al-Rusul wal Muluk, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट एंड किंग्स, जिसने जो पैगंबर जो थे उनका इतिहास और राजाओं के इतिहास के बारे में लिखा। ऑफ तबरी द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वाज ट्रीटेड विद द इस्लामिक पीरियड एज फोकल पॉइंट। The tradition of local history writing developed with the breakup of the खलीफा। मेनली जो इतिहास था जो उस टाइम पर खलीफाओं का जो ब्रेकअप हुआ उसके बारे में इसमें लिखा गया। बुक्स वर रिटन इन पर्शियन अबाउट डायनेस्टीज।
cities or region to explore the unity and variety of the world of Islam. Geography and travel रिहला constituted a special branch of अदब. मेनली जो भूगोल और जो घूमना यानी कि रिहला जो था वो सबसे मेन ब्रांच थी इसकी. These combine knowledge from Greek, Iranian and Indian books with the observation of merchant and traveler, जिसके अंदर मेनली जो यूनान, ईरानी और भारतीय जो पुस्तकें हैं ना उनके ऑब्जर्वेशन करके यात्रियों ने वो चीज़ें लिखी. In mathematical geography, the inhabited world was divided into 7 claims parallel with the equator, corresponding to our 3 continents. The exact position of each city was determined astronomical. मेनली इन्होंने जो उस टाइम पर जो थे शहर इनको 7 भागों में बांटा और बताया कि शायद 3 महाद्वीप के आसपास इसमें थे. मरूज अल दहब, गोल्डन मेडवा ऑफ मसूदी to illustrate the wide history of India was the greatest attempt by an 11th century of Islam and observe what was the value in another cultural tradition. उसने जो इतिहास की बुक लिखी उसमें ये बताया कि भाई दूसरे जो संस्कृतियां हैं जो परंपराएं हैं उनकी वैल्यू क्या है. By the 10th century an Islamic world had emerged which was easily recognizable by traveler. Religious buildings were the greatest external symbol of the world. Mainly जो उस टाइम पे इस्लामिक जो संसार था उसकी जो बातें थी, धार्मिक जो मैटर था या और चीज़ें थी, बहुत आसानी से हमें पता बाहरी दुनिया के सिंबल के बारे में पता चल जाता है. Moscow, Syrian and Tom were Spain in Central Asia show the same basic design. Arch, dome, minarets, open courtyard and express the spiritual and practical need of Muslim. यानी कि मुसलमानों की जो मेन जो मक्का का जो स्थान था वो मेन उसके अंदर जो ओपन कोर्टयार्ड था वो सब बातें इसमें बताई गई भाई किस तरह से मस्जिद है वो बनती थी. In the first Islamic century, the mosque acquired a distinct architectural form, roof supported by pillar. जो छत थी वो किससे सपोर्ट होती थी? स्तंभों से. Which transcended regional variation. और क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी इसमें अलग अलग. The mosque had an open courtyard, and a fountain or pond was placed leading to a vaulted hall which could accommodate long line of worshipper. और जो पूजा वगैरह के लिए आते थे उनके लिए लंबी लाइनें बनाने के लिए खुला क्या होती थी? जगह होती थी. वर्शिपर एंड द प्रेयर लीडर.